Right. We'll start with the Omkar first and we'll salute our Gurus. Both hands in Namaskar position. Inhale. 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 Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. So feel the vibration after Omkar and after the prayer. Now rub your palms gently, palms on eyes, and open the eyes. Yes, am I audible? Okay, yes. So, sir, मी share screen करू ना? Just a moment. वृषाली एवढे खणखणीत कस काय तू पुण्यातच आहे ना बाकी लोक पुण्यातून एवढं खणखणीत नाहीये Yes, so my topic is excretory system. So what is the excretory system? It is a passive biological system that eliminates excess non-useful material, metabolic waste, from the body fluids of an organism, so as to help maintain internal chemical homeostasis. Just a moment. Internal chemical homeostasis and prevent damage to the body. Yes. So next slide. What are the organs of excretion? So the organs of excretion include the skin, liver, large intestine, lungs, and kidneys. So together these organs make up excretory system. They all excrete waste, but they don't work together in the same way that organs do in the most other body systems. जैसे other systems में organs एक साथ काम करते हैं, लेकिन excretory system में सब organs they work differently. Like skin works different, liver, large intestine, lungs, and kidneys, they work differently. Okay? So next slide. So I made a table. So organs of excretion, organs and their functions. So what lungs do? They excrete the carbon dioxide, nitrogen, and it also eliminates the water जो हम ब्रीद इन करते हैं या फिर हमारे लंग्स में जो भी थोड़ा रहता है मॉइस्चर दैट एक्सक्रीट्स आवर लंग when we breathe out. Then what skin does? Skin excretes fluid waste called sweat or perspiration. Okay, helps to regulate the body temperature. Then what large intestine works? It eliminates solid waste that remains after food is digested and water is extracted from the indigestible matter. The large intestine also collects and excretes waste from throughout the body. So what large intestine do? It eliminates the solid waste and it also collects the and excretes waste throughout the body. म्हणजे पूरा शरीर का वो excretion करता है.
Now, what kidneys do? Kidneys remove the nitrogenous waste from the blood, such as urea, as well as salts and excess water from the body, and excretes them in the form of urine. Okay, next slide. So we'll now see one by one organ in detail. So what lungs do? Lungs, when we breathe in, air enters the lung, and oxygen from the air moves from the lungs to the blood. Then at the same time, carbon dioxide, a waste gas, or nitrogen moves from the blood to the lungs and is exhaled. Means we breathe. When we breathe out, so that process happens. So and also our lungs helps to remove the moisture और द वाटर फ्रॉम आवर लंग्स. जैसे हम कोल्ड वेदर में जाते हैं तो वहां पे, या फिर हमारे यहाँ ठंड होती है तो मॉर्निंग में जब हम सांस लेते या छोड़ते हैं तो फॉग मुंह से बाहर निकलता है. सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन डन बाय आवर लंग. ओके, यस. नाउ, and the exchange of gases is the most important part of our body and it is essential for life. Okay, next slide. So alveoli. So from the जो हमने अभी इनहेल की थी एयर, तो वो कैसे वर्क करती है, I'll just explain in short. जैसे हमें सबको पता है कि alveoli हमारी कैसे काम करती है. तो from there the air is directed through smaller and smaller passages called the bronchioles. तो यहाँ पे जो bronchioles है, जो हम फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रोंकस है, तो अगर दो है तो उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. सो तो ब्रीद इन करते हैं, वो एयर ब्रोंक्यूल्स में जाती है. देन इट पास टू द एल्वियोलर डक्ट. यहाँ पे जो डक्ट है इसमें वो एयर एंटर करती है जिसमें ऑक्सीजन होता है. यस. देन इट फाइनली एंटर्स टू द एल्वियोलस. सो हमारा एल्वियोलस लंग्स में कितना बड़ा होता है? So there are about 600 million alveoli in the lungs, and if we stretch them out, they would cover an entire tennis court. So that is the bigger alveoli is there in the smaller lungs. Yes. So next is the skin. The skin is also a largest organ of our body. It covers the entire body. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ली है, so we can see the sweat glands here, the skin is here, and there are the hairs. Hair. Okay, so it is the protective shield against the heat, light, injury, and infection. And excretion through the production of sweat by sweat glands. So excretion कैसे होता है? यहाँ पे जो sweat glands है, इसमें से हमें sweat glands से sweat का excretion होता है. Then to cool the body in hot conditions and maintain the homeostasis. So excretion is always controlled by nervous system. जैसे हमारे पूरे systems में nervous system important ही है, तो excretion में भी nervous system का major role है. It controls the nervous system controls the system. Okay. So sweat glands, there are two types of sweat glands, and humans have 2 to 5 million sweat glands. Exceptions are the lips, external ear, canal, and nails. यहाँ पे sweat glands नहीं होती है. So there are two names, acrine glands and apocrine glands. So acrine glands occur over most of the body and open directly onto the surface of the skin. तो यहाँ पे सरफेस पे ही एक्राइन ग्लैंड्स होती है, और एपोक्राइन ग्लैंड्स जो हेयर फॉलिकल होते हैं उसमें होती है एपोक्राइन ग्लैंड्स टू द सरफेस ऑफ द स्किन. ओके. एंड सो स्किन में जब हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जब हमारा एग्जाम होती है या फिर हमें कोई ट्रेन कैच करनी होती है, तो जब हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते ऐसे हमें लगता है, तो वी स्टार्ट स्वेटिंग.
और हमारा हार्ट रेट भी बढ़ता है. So that's is the reason that our sympathetic nervous system activates. So it's controlled by the nervous system. Okay, so next is urinary excretory system. अभी हमने lungs देखे, फिर बाद में हमने skin देखा. Now we'll see the urinary excretory system. So the components of urinary excretory system is pair of kidneys which filters the blood. यहाँ पे हम देख सकते हैं. Here we have the two kidneys. Then ureters is a tube. यहाँ पे है ये ureters. It carries the urine. Then bladder, one bladder, it stores the urine, and urethra, it helps to discharge the urine. So next slide, I will explain then. Okay, now we'll see the kidney. Each kidney, we have two kidneys. Okay, human beings have two kidneys. So it's the structure of our kidney. Each kidney weighs about 160 grams and get rid of 1 to 1.5 liters of urine per day. एक दिन में 1 to 1.5 liters urine प्रिपेयर होता है, किडनीज जो फिल्टर करते हैं उसमें से. So the two kidneys together filter 200 liters of fluid every 24 hours. So how it works, we'll just see. Blood flows into kidneys through the renal artery. Okay, so blood यहाँ पे renal, जैसे हमने पहले भी डायग्राम में देखा, यहाँ पे एओर्टा है, इसमें से ब्लड आएगा किडनीज की तरफ. ओके, so यहाँ पे ये अंदर जाएगा किडनी में, फिल्टर होगा, फिर ये वेना कैवा से बाहर आएगा. So blood flows into kidneys through the renal artery. यहाँ से ब्लड अंदर गया, जो प्योर होना है. So this large blood vessel branches into smaller blood vessels until the blood reaches the nephron. तो यहाँ से ब्लड अंदर जाता है, ये पूरा घूमता है, नेफ्रॉन्स में जाता है. So nephrons begins in the cortex. ये जो इनर है, ये जो आउटर पोर्शन है, इसमें से नेफ्रॉन स्टार्ट होगा. So in nephron, blood is filtered by tiny blood vessels of the glomeruli. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे है ग्लोमेरुलस, और जो सिंगुलर है इसलिए इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, अगर प्लूरल होगा तो उसको ग्लोमेरुलाई बोलेंगे. ओके, यस. सो द इन नेफ्रॉन ब्लड इज filtered by tiny blood vessels of the glomeruli and then flows out of kidney through the renal vein. तो यहाँ से प्योर ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाएगा. It is controlled by endocrine system and blood circulates through the kidneys multiple times a day. So दिन भर इसका काम continuously चलते रहता है. Now we'll see the nephrons. Next slide में. Yes, nephron. The nephron is the microscopic structural and functional unit of the kidney. तो ये जो नेफ्रॉन है, ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स है. About 2 million nephrons in each kidney. तो हमें दो किडनीज है, तो about 4 million nephrons in both kidneys together. So each nephron has a glomerulus to filter blood. Each nephron में एक glomerulus रहता है जो blood को filter करता है, and a tubule that returns needed substances to blood. तो blood में कैसे होता है कि नेफ्रॉन में किडनीज में जो इम्प्योर ब्लड आता है, तो उसमें से कोई तो प्योर पार्ट रह जाता है जो फिर से नेफ्रॉन में आता है, और ऐसे गोल घूमता है, फिर यहाँ से जो नीडेड सब्सटेंस है वो फिर से ब्लड से वो निकाल लेता है, और जो सब वेस्ट है वो बाहर भेजते हैं. तो वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर बिकम्स यूरिन. सो बॉडी में से कोई भी ऐसा सब्सटेंस जाता नहीं है जो काम का है, जो अनवांटेड है वही एक्सक्रीट करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन इज लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट ऑर्गन, और जो आज मैंने डिसीजेज लिए हैं ये इस पे ही डिपेंड है, लार्ज इंटेस्टाइन कैसे वर्क करता है. सो नाउ विल सी लार्ज इंटेस्टाइन. सो लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 5 feet. That means 1.5 meters long and 3 inches in diameter. Okay,
So it's a long 1.5 meters long and 3 inches in diameter. So large in diameter but shorter than the small intestine. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ ज्यादा है लेकिन डायमीटर छोटा है, और इसकी लेंथ थोड़ी कम है लेकिन डायमीटर बड़ा है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. एंड इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो व्हाट इट इज फंक्शन, एब्सॉर्ब्स बॉडी वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टेबल मैटर. यहाँ से जो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है वहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड मैटर है यहाँ पे एंटर करता है. तो ऑलरेडी वो डाइजेस्ट हुआ है, तो जिसमें वो अगर पानी है, कुछ मटेरियल है जो बॉडी के लिए यूजफुल है, वो एब्सॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ विल सी द लार्ज इंटेस्टाइन अगेन. So in this slide, we'll see what are the sections of large intestine. So the large intestine have 4 major parts. Cecum यहाँ पे, okay. Then colon, ये जो colon है. Then rectum, this is the rectum. This is anal canal or anus we can call it. So colon consists of 6 sections. The cecum, the ascending colon, यहाँ से this is the ascending colon. Then this is the transverse colon जो ऊपर से नीचे आएगा, that is descending colon. And here यहाँ पे है ये sigmoid colon and the rectum. This is the rectum. Okay. Now next slide. So I have completed the excretory system. Organ wise मैंने explain किया है. Now we'll see the diseases. So first disease is constipation. So what is constipation? बद्धकोष्ठता we can say in Marathi. हिंदी में क्या बोलते हैं? Actually I don't know. So constipation. So what is constipation? It can be defined as difficulty in passing motion at regular time or retention of fecal matter in rectum for prolonged time. तो पूरा हम जब वॉशरूम होते या फिर तो पूरा हम क्लियर नहीं कर पाते, तो जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल है या फिर जो बॉडी ने उसको बाहर फेंकना चाहिए वो अंदर ही जब ज्यादा टाइम तक रहता है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन. सो कॉन्स्टिपेशन मोस्ट commonly occurs when waste or stool moves too slowly through the digestive tract, a condition in which there is difficulty in emptying the bowels usually associated with hardened feces. Okay, so the complications of chronic constipation. Chronic means क्या, जो ज्यादा दिन तक चलते रहता है. एक्यूट है तो वो 1-2 दिन में चला जाता है, लेकिन क्रोनिक में क्या है कि बहुत सारे लोगों को जैसे आदत सी हो जाती है, तो वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में जाता है. So what are the complications? Swollen veins in the anus, because constipation में क्या होता है कि स्टूल पास करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, तो वो जो वेन्स है उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, so that's why they swollen. Torn skin in anus or we can call anal fissure, और पाइल्स भी कह सकते हैं. तो टॉर्न स्किन भी वही नतीजा है कि ज्यादा प्रेशर देने से वो एनस पे बहुत ज्यादा नर्व्स है उस पे प्रेशर आएगा. तो ब्लीडिंग पाइल्स, तो कभी कभी तो ब्लीडिंग भी होता है. देन नेक्स्ट इज प्रोलैप्स रेक्टम. तो प्रोलैप्स रेक्टम मीन्स yes, prolapse rectum occurs when part of the large intestine's lowest section slips outside the muscular opening at the end of the digestive tract. तो हमने अभी देखा, तो यहाँ पे जो है एनस का थोड़ा पोर्शन बाहर आ जाता है क्योंकि ज्यादा हम प्रेशर देते हैं स्टूल पास करने के लिए. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अंदर का पोर्शन बाहर आ जाता है. तो कभी कभी बार तो क्या होता है कि वो पोर्शन हाथों से अंदर पुश करना पड़ता है, इतनी ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है. यस, तो इट्स द प्रोलैप्स रेक्टम. दीज आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन. So next slide we'll see in detail more. Yes, so what are the symptoms of constipation? So having hard dry bowel movements. Okay, then next is have fewer than 3 bowel movements a week.
तो 3 मतलब 1 वीक में वो 3 बार ही जाएंगे टॉयलेट के लिए, तो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि अगर हम रोज स्टूल पास करेंगे तभी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा, जो लोअर इंटेस्टाइन के अकॉर्डिंग है। तो थर्ड पॉइंट इज स्टूल्स आर ड्राई, हार्ड और लंपी। स्टूल्स आर डिफिकल्ट, पेनफुल टू पास। तो अभी ये सेम ही हुआ कि हम जब हार्ड स्टूल होगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट और वहां पे पेन भी हुआ एनस में। सो उसका नतीजा क्या होगा, हैव अ स्टमक एक और क्रैम्प्स। तो उसमें से स्टमक में एक होगा और क्रैम्प्स आएंगे। फील ब्लोटेड और नॉशियस, तो हमेशा ऐसे लगेगा कि कुछ तो भरा हुआ है पेट में, हमेशा वो हेवी हेवी लगेगा। और फिर नेक्स्ट है फील दैट हैवंट कंप्लीटली एम्प्टीड बॉवेल आफ्टर मूवमेंट। स्टूल पास करके भी आएंगे तो भी ऐसे लगेगा कि नहीं, कुछ तो अभी बाकी है, कुछ तो फ्री नहीं लगता है, हेवी लगता है। So these are the symptoms of constipation. So what are the causes? The general causes: eating foods low in fiber. जो हम खाना खाते हैं वो बहुत ही फाइबर्स में लो होता है। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो समर भी है फिर भी वो पानी नहीं पीते, उनकी बॉडी को जरूरत भी होती है, अगर फिर भी वो कैसे होता है कि आलस होता है या फिर छोड़ो जाने दो, यूरिन को जाना पड़ेगा, इसीलिए लोग अवॉइड करते पानी ड्रिंकिंग करना। मोस्टली छोटे बच्चों को वो ज्यादा तकलीफ होती है। और फिर नेक्स्ट है नॉट गेटिंग इनफ एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी कॉन्स्टिपेशन में हमें तकलीफ हो सकती है। तो आयुर्वेदा के अनुसार वात प्रकृति जो पीपल है उसको वो ज्यादा प्रोन होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, ऑलरेडी उनके बॉडी में वात है। अगर उन्होंने कुछ ऐसे खाना खा लिया कि वो बहुत डिफिकल्ट है डाइजेशन के लिए, तो उन्हें तो कॉन्स्टिपेशन होना ही है। फिर सीजनल चेंजेस, जैसे वेदर चेंज होता है या फिर रेनी सीजन आता है तो हमारा डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर भी लोग मसाले वाले खाना खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, फिर ये जो है खाना वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तभी भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो चेंजेस इन रेगुलर रूटीन, जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में टॉयलेट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तभी भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस है, क्योंकि हम वो फिकल मैटर ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, फिर वो फिर से एब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। और ईटिंग और गोइंग टू बेड एट डिफरेंट टाइम्स, ये भी बहुत अभी कॉमन हो चला है कि लोग टाइम पे सोते नहीं है, काम करते हैं या फिर मोबाइल पे टाइम पास करते रहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो दिस इज वेरी जनरल कॉजेज। So next I will explain some food habits which causes the constipation. So alcohol is frequently mentioned as a likely cause of constipation. तो अल्कोहल की वजह से सबको नहीं होता है, लेकिन कई लोगों को हो सकता है। That's why it is mentioned that likely. So gluten containing foods. Gluten is a protein found in grains like wheat. तो एक ग्लूटेन जो है वो व्हीट में हमें मिलता है। तो कई लोग क्या होते हैं सिर्फ वो गेहूं का ही खाएंगे सब, या फिर मैदे का खाएंगे, तो उनको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन उनकी वजह से। नाउ प्रोसेस्ड ग्रेन, ओवर ईटिंग ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बड़ा कारण है। कई लोगों को दूध ज्यादा पसंद है या फिर मिठाई वो ज्यादा खाते हैं, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि मिल्क ऑलरेडी वो बहुत हेवी होता है डाइजेशन के लिए। आयुर्वेदा में तो मिल्क को थोड़ा कम ही लेने को बोला है, तो नहीं होगा लेकिन हो सकता है। तो रेड मीट, फ्राइड और फास्ट फूड, अभी ये तो बहुत कॉमन हो गया है। जैसे रेनी सीजन आता है, सबको पकोड़े खाने हैं, भजी खानी है, तो ये भी कारण है कॉन्स्टिपेशन के लिए। So we'll go to next slide. Diagnosis. How we diagnose the constipation. So पहला है medical history. We can ask that person कि आपको कब से हो रहा है, या फिर हम पूछ सकते हैं कि कितने दिनों से है, एक्यूट है, क्रोनिक है, ऐसे। तो नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि पेट कहाँ पे दुखता है या फिर
पेट में हार्डनेस है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन. So blood test, urine test, stool test, it will be taken that when जब physician advise करेंगे तभी हम blood test, urine test और stool test से constipation का पता कर सकते हैं. Next is examination of the rectum and lower or sigmoid colon sigmoidoscopy. So I will just explain what are these. Okay, so the sigmoidoscopy is a test that looks at the rectum and lower part of the large intestine. So sigmoidoscopy से क्या करेंगे वो rectum और lower part of large intestine को check करेंगे. So examination of the rectum and entire colon, it is colonoscopy. So colonoscopy क्या है? Is a way for the doctor to see the entire large intestine. Okay. Next is evaluation of anal sphincter, muscle function and anorectal manometry. So what is anorectal manometry? It is a test that measures how well the rectum and anal sphincters are working. So these are the diagnosis. Next slide. So what is the allopathic treatment for constipation? A number of prescriptions, medications are available to treat constipation. So what are these? Lubiprostone or Amitiza, linaclotide, Linzess, and plecanatide or Trulang work by drawing water into intestine and speeding up the movement of the stool. So how these medicines work? They draws the water into the intestine. जैसे लोगों को कम पानी पीने की आदत है तो उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, तो ये जो मेडिसिन है उससे क्या होगा, वो वाटर they will draw the water into the intestine and speeding up the movements of the stool. Now drink more water, ये भी एक ट्रीटमेंट का ही पार्ट है. Eat more fiber, especially soluble non-fermentable fiber. Exercise more, eat probiotic foods or take probiotic supplements. Then laxatives or purgatives. So its example is Isabgol. So how the Isabgol works? Isabgol has a decent amount of soluble and insoluble fiber that helps to make it a good cure for constipation. Isabgol has hygroscopic properties that help it to absorb water from the digestive tract and enhancing consistency of stool. And Isabgol has minimum side effects, so it is commonly used medicine, Ayurvedic medicine है ये Isabgol. It is very good, it gives good benefits for constipation. और उसका हैबिट भी हुआ तो भी उसका साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है. So there is no harm to having the Isabgol if any person is having constipation. So next slide. Next disease. So अभी मैंने ये योगिक मैनेजमेंट दोनों डिसीजेस का ऑलमोस्ट सेम है, तो मैंने अभी नेक्स्ट डिसीज लेके फिर मैं बाद में योगिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन करूंगी. So next second disease is hemorrhoids. So hemorrhoids is also called as मूलव्याध. मराठी में उसको मूलव्याध बोलते हैं. Okay. So it can say that hemorrhoids are swollen and inflamed veins in the rectum and anus that cause discomfort and bleeding. These swollen veins inside the rectum or outside the anus can cause pain, anal itching, and rectal bleeding. Symptoms often improve with at-home treatment, but on occasion people need medical procedures. अगर ये ज्यादा दिन तक वैसे ही चलता रहा जैसे हेमोरॉइड्स है तो उस पे मेडिकल प्रोसीजर्स लग सकती है. और ये इनिशियली होम ट्रीटमेंट से अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मेडिकल ऑपरेशन या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. So complications. Chronic blood loss from a hemorrhoid could cause anemia. जब blood loss होता है स्टूल से होता है तो it can cause anemia. But
अगर इनिशियली 1-2 चम्मच है, ऐसे ज्यादा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो इट विल नॉट कॉज एनीमिया। बट अगर बहुत ज्यादा पोर्शन में ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया हो सकता है। एंड रिस्क फैक्टर फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। यस, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम सिम्टम्स देखेंगे। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ह्यूमेराइड्स? इचिंग और इरिटेशन इन एनल रीजन। एनल रीजन में ड्राइनेस आएगा, इचिंग होगा और इरिटेशन होगा। पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट और व्हेन सिटिंग। जब बैठते हैं, जिनको मूवव्याध है, वो जब बैठते हैं तो वो ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं, वहां पे पेन होता है या फिर उनको डिस्कम्फर्ट लगता है। स्वेलिंग अराउंड एनस, वो स्वेलिंग भी महसूस कर सकते हैं और ब्लीडिंग होता है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ह्यूमेराइड्स? तो ये कॉन्स्टिपेशन का ही नेक्स्ट लेवल है कि जब हम कॉन्स्टिपेशन में स्टूल पासिंग के लिए जब तकलीफ होगी तो ह्यूमेराइड्स तो होगा। तो कॉजेज आर स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी। तो ओबेसिटी में क्या होगा, वहाँ पे लिथार्जी है, मूवमेंट्स कम है, तो लार्ज इंटेस्टाइन पे प्रेशर आएगा एंड इट विल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, तो प्रेगनेंसी में भी वही सेम होगा कि जो फीटस है, बेबी है, उसका प्रेशर लार्ज इंटेस्टाइन पे जाएगा एंड देयर कैन बी द कॉन्स्टिपेशन। और नेक्स्ट जो ह्यूमेराइड्स है, फिर वो हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन देयर कैन बी हैपन इन ओबेसिटी एंड इन प्रेगनेंसी। Okay, so in next slide we'll see the diagnosis. What are the diagnosis of hemorrhoids? First is digital examination. So what doctors do in digital examination? Doctor inserts a gloved lubricated finger into the rectum और फिर वो डॉक्टर फील करेंगे कि एनीथिंग अनयूजुअल सच एज ग्रोथ। अगर नॉर्मल है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कुछ ग्रोथ है तो डॉक्टर कैन बी फील दैट देयर इज समथिंग अनयूजुअल। सो व्हाट आर द विजुअल inspection? Internal hemorrhoids are often too soft to be felt during a rectal exam. Doctor might examine the lower portion of the colon and rectum with an anoscope, protoscope or sigmoid scope. तो हमने पहले देखा कि what is the sigmoidoscopy? तो sigmoidoscopy क्या है? It is a test that looks at the rectum and at lower part of the large intestine. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाट इज द एलोपैथिक ट्रीटमेंट। सो द एलोपैथिक ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमेराइड्स इज ऑफन रिलीव द माइल्ड पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ह्यूमेराइड्स विथ होम ट्रीटमेंट। मतलब है हम घर पे भी ये ठीक कर सकते हैं। तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स? ईट हाई फाइबर फूड्स। तो इसमें क्या आएगा? यौगिक आहार आएगा। नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज द यौगिक आहार। ईट मोर फ्रूट्स, फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं। वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन। तो होल ग्रेन्स में भी कभी कभी क्या होता है कि जब जैसे हम मटकी, मूंग वो खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, तो उसमें से भी कई लोगों को जो वात पीपल है उनको भी कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता ही है। तो उन्होंने ये होल ग्रेन्स खाते समय थोड़ा ध्यान देके करना है, या फिर डॉक्टर की सलाह लेके डाइटिशियन को पूछ के फिर लेना है, जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन या ह्यूमेराइड्स का इश्यू है उन्होंने। ओके, नाउ यूज टॉपिकल ट्रीटमेंट। So what are the topical treatments? Yes. So topical treatments is a medication that is applied to a particular place or on or in the body. मतलब ऊपर से जो अप्लाई करना है उसको टॉपिकल ट्रीटमेंट्स बोलते हैं। तो उसमें क्या आएगा? अप्लाई ह्यूमेराइड क्रीम और suppository containing hydrocortisone or use pads containing with hazel or a numbing agent. तो वहाँ पे जो ड्राइनेस है
उसके लिए कुछ तो क्रीम दे सकते हैं डॉक्टर, जो ह्यूमेराइड क्रीम बोलते हैं, और सपोजिटरी कंटेनिंग हाइड्रोकॉर्टिसोन, मतलब उस पे नमिंग एजेंट रहेंगे। नेक्स्ट इज सोक रेगुलरली इन अ वार्म बाथ। सोक एनल एरिया इन प्लेन वार्म वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स 2 to 3 टाइम्स अ डे। जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है वो ये कर सकते हैं। तो टेक ओरल पेन रिलीवर्स। So what are the pain relievers? Can use acetaminophen or Tylenol and others. Aspirin or ibuprofen, Advil, Motrin IB and others. Temporarily to help relieve discomfort. So ये सब पेन किलर्स के नाम है, लेकिन ये टेम्पररी ही होगा। अगर कम तकलीफ है तो इससे कम हो जाएगा। Okay, now with these treatments, hemorrhoid symptoms often go away within a week. लेकिन अगर नहीं गया तो क्या करना है? Visit doctor in a week if don't get relief. If the person not getting the relief after a week with taking these medicines, with the cream and doing all these home remedies, so that person have to go to the doctor in a week if don't get relief, or sooner if have severe pain or bleeding. ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा है, सीवियर है, पेन भी बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर को विजिट करना ही है। यस, नाउ नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्लाइड विल सी। Yes. So next is yogic management. So I have completed both the diseases. What are the symptoms, causes, how we diagnose it? Now now we'll see the yogic management, IAYT. So in that we see the Annamaya Kosha. We'll go through the kosha wise. Okay. So in Annamaya Kosha, all types of asanas, ह्यूमेराइड्स में और कॉन्स्टिपेशन में ऑल आसनास वर्क वेल। सिर्फ अगर किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे बीपी है, माइग्रेन है, किसी को वर्टिगो है, तो उन्होंने सब आसन नहीं करने हैं। जिनको बीपी है उन्होंने इन्वर्टेड आसनास को नहीं करना है। जिनको जैसे पेट बहुत फूला हुआ लगता है उनको, तो उन्होंने प्रोन एक्सरसाइज संभाल के करने हैं। और सिटिंग में जिनको नी पेन है, जैसे गोमुखासन में, वज्रासन में नी पेन है, एंकल पेन है, तो उन्होंने थोड़ा कॉशन के साथ, ड्यू केयर के साथ करना है। सॉरी, यस। देन स्टैंडिंग में जिनको बैलेंसिंग का इश्यू है, तो उन्होंने नहीं करना है, मतलब संभाल के करना है और सपोर्ट के साथ करना है, जो हम स्टैंडिंग आसन, बैलेंसिंग के आसन करेंगे। और मेडिटेटिव आसना में अगेन पद्मासन करेंगे, वहां पे भी वो भी अच्छा आसन है। लेकिन अगर आपको नी पेन है, अगर आप कंप्लीट आसन फुल पोज नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन डू द हाफ पोस्चर ऑल्सो। नाउ द शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया में हम कपालभाति, अग्निसार, अग्निसार इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन। वमन धोती, ये वंस इन अ वीक करना है। वस्त्र धोती, शंख प्रक्षालन, नौली एंड बस्ती। अब ये बस्ती जो है ये ह्यूमेराइड्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन से। ठीक, तो डाइट, नौली में भी अच्छा इफेक्ट आएगा स्टमक पे, वहाँ के जो ऑर्गन्स है उनको अच्छे से स्टिमुलेशन मिलेगा। नाउ डाइट, सात्विक डाइट, हठ योगिक डाइट, मितहार। इन नेक्स्ट स्लाइड विल सी द डाइट। ओके, नाउ diet according to Hatha Yoga Pradipika. So the shloka is susnigdha madurahascha chaturamscha vivarjitaha bhujyate shiva sampritye mitaharasa uschate. So moderate diet is that in which 3/4 of hunger is satisfied with food well cooked with ghee and sweets, and eaten with the offering of it to the Shiva, which is residing in our body. So susnigdha means क्या? वो स्निग्ध चाहिए, well lubricated with the ghee चाहिए, then madhur चाहिए. So what is madhur? It is not with the sugar.
बट इट इज स्वीटन इन द नेचर। वो नेचुरल स्वीट चाहिए, ना कि ऊपर से लिया हुआ स्वीट चलेगा। देन चतुर्थांश मीन्स क्या? तो 3/4 ऑफ हंगर इज सेटिस्फाइड विथ फूड। तो और बाकी जो है एक पोर्शन उसके लिए हवा के लिए चाहिए और एक पोर्शन उसमें पानी हमें पीना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट श्लोक इज पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोर्षणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनमश्चरेत्। तो पुष्टम, पुष्टम मीन्स पुष्टि, जो स्ट्रेंथ गिविंग फूड है वो, और उसको पौष्टिक भी हम कह सकते हैं। सुमधुरम, अगेन इट इज वेल स्वीटन, नॉट विद द एक्स्ट्रा शुगर बट इट इज विथ नेचुरल शुगर। देन ग्रीजी, मेड विथ घी, स्निग्धम, ओके, मेड विथ घी, मिल्क, गव्यम, गाय के दूध से बना हुआ, नरिशिंग टू धातु, धातु प्रपोर्शनम, नरिशिंग टू धातु, मनोभिलषितम, जो प्लीजिंग है और जो सूटेबल है वही खाना चाहिए। जो हमारे टंग को अच्छा लगता है वो नहीं, जो हमारे बॉडी को नरिश करेगा, धातु को अच्छे से वो नरिश करेगा, जो अच्छा लगता है, मतलब हमारे मन को अच्छा लगना चाहिए, टंग को नहीं। ठीक है, यस। सो दिस इज द डाइट अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। In next slide, we'll see what is the diet according to Bhagavad Gita. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो हमारे ठाणे स्कूल योगा का ये ब्रीद वाक्य है कि योगो भवति दुःखः। तो जो युक्त है, आहार में युक्त है, विहार में युक्त है, जो कर्म युक्त करता है, और जो स्वप्नावबोध से उसका युक्त है, मॉडरेट है, तो it will that person will not affect by any dukha. So yuktahar, moderate and proper diet. So what is yuktahar? It is a moderate and proper diet. जितना चाहिए उतना ही खाना है और proper diet खाना है। कि हमारे टंग ने बोला चलो आज भजी खा लो, लेकिन हमें बात है तो वो नहीं करना है। मैं सिर्फ पकौड़ा और भजी बोल रही हूँ क्योंकि अभी तो मानसून सीजन है और सबको वही अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द एग्जांपल। एंड he who is temperate in his habits of eating, sleeping, working and recreation can mitigate all material pains by practicing the yoga systems. तो इसका यही एक अच्छा सा मीनिंग है। दिस इज द आइडियल श्लोक कि how human beings have to do their activities during his life. Yes. So now next we'll go towards our pranayam kosha. So breathing practices, pranayam, इसमें हम क्या क्या कंसिडर करेंगे? अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतली, सितकारी एंड भ्रामरी। तो यहाँ पे मैंने भस्त्रिका नहीं लिखा है, भस्त्रिका भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर बीपी है, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, माइग्रेन है, तो उसमें भस्त्रिका नहीं करना है। मुद्राज, मुद्राज में तड़ागी मुद्रा और अश्विनी मुद्रा स्पेशली ह्यूमेराइड के लिए आएंगी, क्योंकि अश्विनी मुद्रा में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एनल को, so that will help to strengthen the sphincters which are in the anal. So bandhas, उड्डयन बंधा, बाह्य and अंतर बंधा. Yes, now मनोमय कोशा. It's a relaxation, cyclic meditation. शवासन, इसमें गाइडेड मेडिटेशन हम करवा सकते हैं. जैसे सिर्फ शवासन बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, तो हम गाइडेड मेडिटेशन में उनको थोड़ा सा एंगेज कर सकते हैं. तो गाइडेड मेडिटेशन विल गिव द गुड बेनिफिट्स टू दैट पर्सन. तो योग निद्रा, धारणा, ध्यान एंड ओम चैंटिंग. तो ओम चैंटिंग में हम उनको बता सकते हैं कि कैसे करना है, ओम कैसे चैंट करना है, कैसे फूक करना है.
तो इसमें से उनको बहुत मदद होगी ओम चैंटिंग में. So next we'll go विज्ञानमय कोशा. So in विज्ञानमय कोशा we do counseling. लोगों को हम थोड़ा सा समझा सकते हैं कि आपने डाइट कैसे रखना है, कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है. Yes. Then आनंदमय कोशा is the blissful state. Yes. Thank you. अब अभी डोंट नो कि आपको कितना समझ में आया. So I will stop my sharing. रेकॉर्डिंग स्टॉप करो सर. आया. Sorry, one. I tried my best.